Hello guys, what's up? Guys, we are discussing Max Weber in our discussion of sociological thinkers, and we have already discussed the key concepts of Max Weber, including ideal types, Verstehen, interpretative sociology, and Protestant ethic and spirit of capitalism. And in this video, we are going to talk about the theory of bureaucracy, which was propounded by Max Weber, and it is one of the key important concept which is uh, around which UPSC asks a lot many questions. And guys, I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS officer. So first of all, we will see some of the questions which UPSC has asked on this particular concept, theory of bureaucracy by Max Weber. So if we go reverse, in 2021 they asked, do you agree with Max Weber's idea that bureaucracy has the potential to become an iron cage? So basically this is criticism of theory of bureaucracy, which was given by himself, Max Weber. So we will discuss the answer of this question during this discussion. How does Weber use the notion of ideal types in his theory of bureaucracy that UPSC asked in 2014? It was a relatively easy question. In 2005, they asked, discuss Weber's ideal types and role of authority in bureaucracy. So in previous video, we discussed about three types of authority which are stemming from three different types of social action: traditional, affective, and legal rational. So this question is around that. And in 1996, if we go around 25 years back, UPSC asked, explain the origin and characteristics of bureaucracy according to Weber and illustrate the structural sources of dysfunctions of bureaucracy. So basically, what are the disadvantages or dysfunctions of bureaucracy? So this is a big concept, or we can say that it is an elaborate concept which was propounded by Max Weber, and he was the first sociologist to talk about the bureaucracy and the bureaucratic structures which were prevailing during his times. So in the introduction, we should start from the fact that Weber's theory of bureaucracy must be seen in the context of his general theory of social action. So we all know that Weber was interested in analyzing sociologically the social action and that interpretative understanding of social action, which he termed as sociology. गाइज वन मोर थिंग, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेंगे, आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, तो आई थिंक आप ओवरऑल जो मैक्स वेबर की जो पूरी हर तरह की जो थ्योरी है, वो सारी थ्योरी जो आप इस एक वीडियो से समझ जाएंगे, इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम इलाबोरेटली जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरा डिस्कशन अगर आप समझ लेते हैं, तो आपको जो यूपीएससी में हर साल जो है वो कम से कम 15 या 20 मार्क का आपका जो कंटेंट है वो डेफिनेटली तैयार हो जाएगा. और जो कंटेंट मैंने इस स्लाइड्स में जो रखा है, यू विल फाइंड वेरी रेयरली दिस कंसेप्ट. सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैक्स वेबर इज सेइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसकी जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दैट वी हैव टू सी इन द कॉन्टेक्स्ट or in the larger context of his general theory of social action. Basically, we know that he identified three types of social actions, and these type of social action which are based upon the meanings or the motives which is attached by the actor behind his social action. So he said that man is a social animal and he attaches meanings. He is a thinking being and he attaches meaning behind his actions. So a sociologist has to understand those meanings in order to comprehend any social reality. So he believed that जो third form of action जो है legal rational action या rational action, it has become the most dominant mode of action in the modern industrial society. He said in traditional societies the prevalence of traditional and affective action was more as compared to rational action, but in modern society the phenomena of rational action has become the most dominant. And what is rational action? A rational action involves a clear awareness of the goal and a systematic assessment of the various means of attaining a goal. यानी कि जब आदमी कोई काम करता है, he does something, he first of all he knows what he want to do, means why he is doing anything. Suppose a person rising up early in the morning and going to his field. So he has a clear-cut defined goal in his mind that he want to earn livelihood or he want to grow crops. And for that enterprise or for growing crops, he knows, he has the technical know-how how to do that, and he adopts different kind of means, and he knows which mean is the best suited mean, and he use that particular means. So basically
रैशनल एक्शन ऐसा एक्शन है जहाँ पे जो गोल जो है उसकी क्लियर कट अवेयरनेस है, एंड उसके लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके मेथड्स अवेलेबल हैं उनका भी जो है वो प्रो एंड कॉन्स सबको पता है. सो बेसिकली ही एक्सप्रेस्ड द इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ रैशनल एक्शन इन वैरायटी ऑफ एरियाज including state administration, educational system, political system, science, and even in Western classical music. And he termed the growing dominance of rational action as the process of rationalization. And he said that rise of bureaucracy or bureaucratization is the prime example of this process. So he said that इन द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन ब्यूरोक्रेटाइजेशन इज़ द मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इट. यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें रैशनलाइजेशन वाली जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व की जा सकती है एज कम्पेयर टू द अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ मैक्स वेबर. So basically Weber believed that bureaucratic organization are the most dominant institution of the industrial society. This was his assumption कि जो traditional जो society है उसमें bureaucratic organizations ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थे, exist नहीं करते थे, but they were not in a significant manner, या उनका जो है वो predominance नहीं था. But जो modern industrial society है उसमें जो mushrooming of bureaucratic organization है it can be clearly visible. So he saw it as an organization with a hierarchy of paid full-time officials who formed a chain of command. So these are three of the characteristics which he gave as a definition. A bureaucratic organization is an organization with hierarchy of paid full-time officials and who forms a chain of command. जो bureaucracy की जो key characteristics जो features हैं उनको एक एक feature को जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. But first of all we will see that a bureaucracy is concerned with the business of administration with controlling, managing and coordinating a complex series of tasks. So Weber का ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें जो टास्क थे वो सिंपल इन नेचर थे, वो इतने लार्ज स्केल पे नहीं थे. अब जो विथ द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और आपका जो मार्केट इकोनॉमी है उसकी वजह से जो टास्क जो हैं मेनली इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी. सिमिलरली जब आपका डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो आने लग गई और जो लार्ज स्केल पे जो नेशन स्टेट की फॉर्मेशन होने लग गई तो गवर्नेंस इज ऑल्सो इट हैज़ बिकम अ ह्यूज टास्क. सो ही सेड दैट to manage and to coordinate and to administer these type of tasks, bureaucracy is a system which is evolved. So there is a need for bureaucracy and that's how it has evolved. So he said that departments of state, political parties, business enterprises, military, education and churches are all organized on bureaucratic lines. That was his observation. And he said that bureaucratic organizations has clearly defined goal. जो भी जितने organizations हैं उनका एक clear cut goal होता है कि उनको जो है वो क्या क्या उनके targets है, क्या क्या उनके objectives है. For example जो हम समझ सकते हैं पुलिस एज ए ऑर्गेनाइजेशन. सो पुलिस एज ए ऑर्गेनाइजेशन इसका जो ओवरऑल गोल है वो क्राइम कंट्रोल है एंड मैनेजिंग ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है. तो इसका जो है वो एक क्लियर कट लेड डाउन प्रोसीजर होता है कि वो कैसे अचीव किया जाएगा. दैट वी विल सी इन मोर डिटेल्स, बट ही सेड दैट एवरी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ क्लियर कट डिफाइंड गोल्स एंड इट इन्वॉल्व्स प्रिसाइज कैलकुलेशन of the means to attain the goal and systematically eliminates those factors which are impediment in the achievement of those objectives, which are hindrance. So this is why the bureaucratic actions are rational in nature, because they have a clear cut calculation of pro and cons. So he said that bureaucracy is rational action in institutional form. Now we will understand what are different key features of a bureaucratic organization. So for that Weber identified the ideal types of bureaucracy, and he said that the ideal types which he was propounding or which he was conceptualizing, it is very rare to see all these features in reality. He said that these features are predominant in most of the industrial society, but जितने features या जो जितने ideal types of bureaucracy उसने identify किए, he said all these are does not existing in reality. So first of all he said that
और इनफैक्ट ही डिफाइंड ब्यूरोक्रेसी एज ए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स उसमें जो है हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स होगा, एंड इट इज़ डिजाइंड रैशनली टू कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स इन द परसूट ऑफ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो ये जो है वो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की। ही कंस्ट्रक्टेड एन आइडियल टाइप ऑफ द लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। लीगल रैशनल इसलिए है क्योंकि उसमें जो है वो प्रिसाइज कैलकुलेशन की जाती है टू अचीव द गोल्स, एंड गोल्स जो है वो प्री डिफाइंड होते हैं। ही आर्ग्यूड दैट द ब्यूरोक्रेसीज इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज दे आर स्टेडीली मूविंग टुवर्ड्स दिस प्योर फॉर्म, एंड now we will consider the elements of the ideal types of bureaucracy. So first is segmentation of official duties. This is the first ideal type of bureaucracy. So इससे वेबर का कहने का मीनिंग ये था कि जितने भी जो टास्क हैं उन सारे टास्क को जो है वो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, इसलिए उनको जो है वो एज अ होल अचीव करना, efficiently achieve करना is a difficult task. So what we do, we break down these tasks into manageable parts with each official specializing in a particular area. यानी कि आपने जो है वो डिफरेंट जो टास्क हैं उनके लिए जो है वो आपने डिफरेंट ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया है, आपने उनको अपॉइंट कर दिया है, and you have called them as their official duty. So the regular activities required for the purpose of organization are distributed in a fixed way as official duties, and each administrative official has a clear defined area of responsibility. अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का समझते हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का समझते हैं। तो एक जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो है उसको हेड करने के लिए देयर विल बी ए एसपी, और उस एसपी को जो असिस्ट करने के लिए जो है वो देयर विल बी एडिशनल एसपीज। उन एडिशनल एसपीज का जो है वो अपना अपना एरिया होगा, किसी का ट्रैफिक होगा, किसी का लॉ एंड ऑर्डर होगा, किसी का क्राइम कंट्रोल होगा, किसी का जो है वो मिसलेनियस एक्टिविटीज़ होगी। सो सिमिलरली जो एक एसपी होगा उसने जो है वो ही इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, बट उसके जो साथ जो एडिशनल एसपी हैं उनका अपना अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन होगा। उसके बाद में जो है वो सर्कल ऑफिसर्स होते हैं या एसडीपीओ होते हैं। तो जो सर्कल ऑफिसर जो होंगे उनका अपना सर्कल होता है, उसमें 2 या 3 पुलिस स्टेशंस का ज्यूरिसडिक्शन आता है, वो अपना काम करेंगे, और उसके नीचे जो है वो फिर उसको जो फर्दर ब्रेक डाउन किया जाता है इन टर्म नेम्ड एज थाना, जो पुलिस स्टेशन जिसको हम कहते हैं कैटेगरी। तो ये जो है वो आपने अपने जो आपके डिफ़िकल्ट जो टास्क थे, यानी कि एक एसपी जो है वो पूरे ओवरऑल ज़िले के सारे काम नहीं देख सकता, इसलिए आपने पूरे ज़िलों को जो है वो थानावार डिवाइड कर दिया, और फिर उसके बाद में जो आपने हर एक लेवल को जो है वो आपने जो है वो उनकी ऑफिशियल डिजिग्नेशन दे दी, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी दे दी। So, for example, state administration is divided into various parts such as education, health, defense, finance, etc. तो similarly जो गवर्नेंस जो है या गवर्नमेंट जो है उसको जो हम जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली गवर्नेंस जो है उसको भी आप जानते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्रीज में जो है वो ये ब्रेकअप किया हुआ होता है, एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, फाइनेंस, एनवायरनमेंट एंड सो ऑन, मल्टीपल fields. And within these departments the officials, they have a clear cut defined competence, and they also have their area of responsibility. So this is the first ideal type, that is segmentation of official duties. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। तो ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की मीन्स देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नेंस और फंक्शनिंग, और हर लेवल पे जो है उसकी जो है वो एक ग्रेडिंग होती है सिस्टमेटिकली फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, एंड एवरी लोअर ऑफिसर they are under the control of a senior officer, and their the tasks which are performed by the lower rank officials, it is supervised by the higher rank officials. So there is a clear cut chain of command and responsibility is established, whereby every official is accountable to his immediate superior for both the conduct of his own official duties and his subordinates. यानी कि जो किसी भी एक रैंक का जो ऑफिसर होता है वो अपने इमीडिएट सीनियर को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपने नीचे वालों के लिए भी, अपने नीचे वाले स्टाफ के लिए भी, और उसके खुद के जो है वो कंडक्ट के लिए भी। सो बेसिकली दिस इज प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की एंड देयर इज अ क्लियर कट चेन ऑफ कमांड. दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. थर्ड इज लेट डाउन प्रोसीजर्स एंड रूल्स. सो वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट. नाउ विल सी कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है उनकी फंक्शनिंग के लिए जो क्लियर कट रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिसाइड किए गए हैं, जो आपका इंडियन पीनल कोड है, CRPC है, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, इनमें जो है पुलिस रेगुलेशन एक्ट, इनमें जो है वो पुलिस के जो है वो प्रोसीजर्स दिए गए हैं, कैसे जो है वो अरेस्टिंग होगी, कैसे जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा, कैसे जो है वो FIR लिखी जाएगी. सो किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उनके जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो क्लियरली डिफाइन करने होते हैं.
and operations of bureaucracy are governed by these consistent system of abstract rules and the application of these rules to particular cases. These rules are clearly defined the limits of the authority held by various officials in the hierarchy. यानी कि कोई भी जो ऑफिशियल है उसकी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फंक्शनिंग करने के लिए उसकी जो है वो क्लियर कट लिमिट्स होती है, जो उसकी अथॉरिटी को भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि कोई भी आदमी जो एब्सोल्युटली पावरफुल नहीं है. एंड ओबीडियंस टू सुपीरियर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द बिलीफ इन करेक्टनेस ऑफ द रूल्स. तो यहाँ पे जो वेबर का थर्ड टाइप ऑफ जो अथॉरिटी था दैट इज लीगल रैशनल अथॉरिटी. जो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ बिलीफ इन द करेक्टनेस ऑफ द रूल्स. यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जो SHO ऑफ अ पुलिस स्टेशन है, यानी कि जो एक इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो अपने सीनियर की बात इसलिए मानता है बिकॉज ऑफ द लेट डाउन हायरार्की एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट और बिलीफ कि जो हमारे जो इमीडिएट सीनियर कह रहे हैं वो सही है. इस वाले बिलीफ में जो है वो अपने सीनियर की बात को फॉलो करता है या ओबीडियंट वो उसके लिए होता है. सो दीज रूल्स आर लेड डाउन, they lay down the fixed procedures for the performance of each task and they impose strict discipline and control, leaving little room for the personal initiative or discretion. और यही वाला जो पॉइंट है इस पे जो है वो मैक्स वेबर ने फर्दर इलाबोरेट किया है कि जब आपने बहुत स्ट्रिक्ट एंड एक सिस्टमेटिक जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस रख दिए तो जो पर्सनल मनूवरिंग होती है, जो इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव होता है उसके लिए जो आपने बहुत कम स्कोप छोड़ दिया है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से जो है वो ब्यूरोक्रेसी डिसफंक्शनल हो जाती है. दैट वी विल सी इन द अपकमिंग स्लाइड्स. जो इसका फोर्थ आइडियल टाइप या फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पिरिट ऑफ फॉर्मेलिस्टिक इम्पर्सनैलिटी. कहने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल जो उस ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसका जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ है दे आर गवर्नड बाय द रूल्स नॉट बाय पर्सनल कंसिडरेशंस सच एज हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स कलीग्स और क्लाइंट्स. यानी कि एक एसपी जो है वो अपने किसी पर्टिकुलर एसएचओ को लाइक या डिसलाइक कर सकता है इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, या आपने किसी कोई एक पर्टिकुलरली जो है अगर कोई सबॉर्डिनेट है वो अपने सीनियर को पसंद या नापसंद कर सकता है, बट दैट डजेंट कम इनटू पिक्चर. अगर आपको आपका बॉस जैसा भी हो, अगर आपको वो ऑर्डर दे रहा है तो आपको जो है वो टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे. हिज एक्शंस आर देयरफॉर रैशनल रादर देन अफेक्टिव और ट्रेडिशनल and business is conducted according to the calculable rules with regard for persons. यानी कि विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सन्स, यानी किसी की जो है वो पर्सनल थिंकिंग्स, पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है उसके हिसाब से जो सिस्टम नहीं रन किया जाता है. इट इज़ रन इन ए स्पिरिट ऑफ फॉर्मेलिस्टिक इम्पर्सनैलिटी. ओके, यू हैव टू राइट दीज की टर्म्स टू गेन मैक्सिमम मार्क्स. अगर आप इसी चीज़ को जो अपने शब्दों में लिखेंगे यू विल गेन लेस मार्क्स, बट इफ़ यू राइट द टर्म फॉर्मेलिस्टिक इम्पर्सनैलिटी these are sociological jargons which you have to use in your answers. फिफ्थ इज अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़. अब भाई जब आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिस्टमेटिकली रन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके इम्पर्सनैलिटी पे बेसिस पे चल रहे हैं, वहाँ पे जो है वो किसी की पसंद और नापसंद का कोई मतलब नहीं है, तो जो ऑफिशियल्स की जो अपॉइंटमेंट की जाएगी या जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, दीज ऑफिशियल्स दे विल बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्निकल नॉलेज और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड देयर एक्सपर्टीज़. और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, दैट इज़ देयर की क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन. इसीलिए आप जानते हैं कि इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जितने भी आपके जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे. अगर किसी का फैमिली बिजनेस है तो पिताजी की जो गद्दी है वो बेटे या बेटी को ही मिलनी होती है. सो दैट इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन. बट ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो देर आर फुल टाइम पेड ऑफिशियल्स और एम्प्लॉय बन जाते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के, एंड देर खुद का जो उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑक्यूपेशन होता है, जो उनका खुद का जो एक ऑक्यूपेशन होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स देयर करियर. इसीलिए जो है वो अपने करियर की बात करते हैं. एंड देयर प्रमोशन इज बेस्ड ऑन सीनियरिटी एंड अचीवमेंट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और समटाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. यानी कि सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशंस भी होते हैं, अचीवमेंट बेस्ड प्रमोशंस भी होते हैं, और कई बार जो है वो दोनों बेस्ड होते हैं. बट आपका प्रमोशन में जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस देखी जाती है, ना कि आप ये डिपेंड करता है कि आप किसके बेटे हैं या आप किसके भतीजे हैं. दैट इज़ द आइडियल और प्योर फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी. देन सिक्स्थ इज सेपरेशन ऑफ प्राइवेट एंड ऑफिशियल इनकम. तो आप जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें एक सैलरी का कॉन्सेप्ट होता है.
जो ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इनकम होगी या उसकी जो नेट अर्निंग होगी, दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट योर अर्निंग, आपको जो है उसके लिए सैलरी दी जाएगी. सो द ऑफिशियल्स डज नॉट ओन एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच ही वर्क्स, nor he can use his position for private gains. Weber, in his own words, said that bureaucracy segregates official activity as something distinct from the sphere of private life. यानी कि जो पर्सनल लाइफ एंड जो पब्लिक लाइफ जो है उसके बीच में एक सेग्रीगेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. सो ही these are the six key components of an ideal type of bureaucracy, and he further elaborated that these ideal type bureaucracy exists only on paper, only on theory, and it is approximated in reality. It is only approximated but it does not exist in toto, यानी कि complete जो है वो नहीं exist करती है. And in most cases it is closely approximated in the capitalist industrial society where rational action has become the मेजर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल. सो ही सेड कि जो ब्यूरोक्रेसी या जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के जो हैं वो डोमिनेंट फीचर हैं, ना कि जो आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो उसका. नाउ देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी. वो भी जो है वो वेबर ने अपने अपनी जो उसका जो थियोरी थी उसमें इलाबोरेट किया है. ये आपको नॉर्मली जो है वो किसी भी बुक में या इग्नू के मटेरियल में नहीं मिलेगा. ये जो है वो आपको जब आप एडवांस्ड सोशियोलॉजी की बुक्स जब पढ़ते हैं आपको उसमें जो है वो ये फैक्टर्स मिलेंगे. सो द की कंपोनेंट और द की फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मनी इकोनॉमी, यानी कि जो एक कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, बिकॉज इन दैट सिस्टम देर इज़ अ गारंटी ऑफ अ कॉन्स्टेंट इनकम फॉर द मेंटेनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी. जो आपके ऑफिशियल्स जो हैं, आप जो जिनको ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं, यू कैन पे फॉर दैम थ्रू अ स्टेबल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. ये जो है वो पर्टिकुलरली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में है कि जब गवर्नमेंट्स जो हैं उनके पास जो है वो थ्रू टैक्सेशन दे विल अर्न मनी फ्रॉम पब्लिक, एंड उसके बाद जो है वो ऑफिशियल्स को जो है वो उसके लिए सैलरी पे कर सकते हैं. सिमिलरली जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आपके इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी बड़ी कंपनी है, वो जो इनकम्स या जो उनको सैलरी जो देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ देयर ओवरऑल रेवेन्यू सिस्टम, या जो उनकी ओवरऑल जो एक कंपनी होती है. Second thing which led to the development of bureaucracy is the quantitative development of administrative tasks, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. यानी कि अगर आप देखते हैं तो पहले जो पॉलिटिक्स जो थी उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जो एक हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड एक ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम नहीं हुआ था. आप जो है वो कुछ लोग जो होते थे वो लाइक पॉलिटिक्स में होते थे, बट उसके लिए जो है वो एक पूरा एक जो है वो नीचे से लेकर ऊपर तक का एक हायरार्किकल सिस्टम नहीं होता था. बट जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है या जो आपकी डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसमें जो है वो आपको इवन कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी जो है आपको जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, बिकॉज दे आर ह्यूज इन नेचर, उनका एक जो वॉल्यूम जो होता है वो नेशन स्टेट लेवल पे या स्टेट के लेवल पे बहुत बड़ा हो जाता है. दैट डेवलपमेंट और यू कैन से द राइज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, it has become an important factor in the development of bureaucracy. Next is the qualitative change of administrative task. इसका मीनिंग है कि जब जैसे 16th-17th सेंचुरी के बाद में जो आपका डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस आने लगे या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस आने लगी, उससे जो है वो सोसाइटी में एक डिमांड हो गई कि सोसाइटी में जो है लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होना चाहिए. आपका जो स्टेट जो है वो दैट शुड बी वेलफेयर इन नेचर. तो आपको इसके लिए जो है वो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जो है आपको ज़रूरत पड़ने लग गई, एंड इसकी वजह से जो है वो आपको ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस रन करने पड़े. दीज आर पॉलिटिकल फैक्टर्स. अगर आप टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे, सो द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पेशली रेल रोड्स एंड मास मीडिया, दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस. Next is modern political ideas such as equality before law and legal guarantees against arbitrariness. जो आपके मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है सच एज इक्वालिटी बिफोर लॉ, भाई आपने लॉ बना दिया, लेकिन उस लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए आपको जो है वो आपको जुडिशरी की ज़रूरत पड़ेगी. उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए आपको पुलिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी. उस लॉ को जो है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी. या जो वेलफेयर स्टेट है उसमें जो है वो सब लोगों को जो है वो जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं या जो गवर्नेंस जो है उसको अगर आपको टू द लास्ट पीपल अगर आपको पहुंचाना है तो यू हैव अ हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स जो है वो फील्ड लेवल पे रह के काम करेंगे. सो दीज आइडियाज़ ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड
आपने जो है वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट मशीनरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी. एंड these are the factors which led to the formation of bureaucracy. And now he said that bureaucracy जो है वो अपने आप इसलिए भी डेवलप हो गई because it is technically superior in other than any other form of organization. तो ही said आपके ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है या एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से उनसे ज़्यादा जो है आपका ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्निकली सुपीरियर है. वाई टेक्निकली सुपीरियर, वी विल सी और वी विल एक्सप्लेन दिस. So we will see what Weber had himself said. He said the decisive reason for the advance of bureaucratic organization has always been its purely technical superiority over any other forms of organization. तो ये वेबर ने आर्ग्यू किया. Why? This superiority stems from the combination of specialist skills subordinated to the goals of organization. इसका मतलब है कि भाई जो एक इंडिविजुअल जो होता है ही में बी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बट वो अपना टैलेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए यूज़ करेगा, ना कि अपने खुद के जो है वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए. दैट्स वाई ब्यूरोक्रेसी इज सुपीरियर इन नेचर. इट डिराइव्स फ्रॉम द एक्सक्लूजन ऑफ पर्सनल इमोशंस एंड इंटरेस्ट विच माइट डिट्रैक्ट फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ दीज गोल्स. अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको जो है वो चंद्रयान लॉन्च करना है. सो अगर आपको इस जो एक ओवरऑल टास्क है कि आपको जो है वो मून पर जो है अगर आपको एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, अगर आपको मून पे एक मिशन लॉन्च करना है, तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क इन नेचर. तो इस कॉम्प्लेक्स टास्क को अचीव करने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा, आपकी जो है वो आपको उसके लिए जो डिफरेंट टेक्निकल स्किल्स चाहिए होगी. उसमें जो है वो इंडिविजुअल को क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये जो है वो चीज़ें मैटर नहीं करेगी. अगर एक कोई इंडिविजुअल जो अगर अपना कि उसको अपना एक जो भी एजेंडा है उसको अगर फुलफ़िल करना है तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पीछे रह जाएगा. लेकिन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इंडिविजुअल के जो टारगेट्स हैं वो पीछे रहते हैं, इनकी बजाय जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है दैट इज़ की. He also said that the superiority of bureaucracy results from a set of rational rules designed explicitly to further the goals of the organization. तो जो आपके clear cut laid down procedure and जो rules हैं उनको जब verbatim follow किया जाता है that makes bureaucracy a technically superior organization. So these are some of the factors why bureaucracy is technically superior in nature. This question can be asked that why Weber's bureaucratic organization or why Weber's bureaucracy is technically superior than any other form of organization. Now this question was asked in 2021, iron cage of bureaucracy. What do we mean by this? So basically Weber said कि जो modern जो industrial state है उसमें bureaucratic organizations जो है they are predominant. एंड इसकी वजह से जो है आपके जो टास्क है उनको एफिशिएंटली भी अचीव किया जा सकता है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो है उनको भी जो है वो आप अचीव कर सकते हैं. बट इसके पीछे जो है वेबर हिमसेल्फ ही वॉज अवेयर अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस. व्हाट ही सेड और आर्ग्यूड इज दैट द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल्स restricted to such specialized task acts as a limitation to human freedom. So when we talk all the time about the organizational goals and when we are completely focused towards the goal of the organization, एक इंडिविजुअल जो है उसकी क्या पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स है या उसके जो है वो खुद की जो एक इनिशिएटिव जो है या अगर किसी फील्ड में जो उसको एक पर्सनल जो डिस्क्रिशन जो मिलता है दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन नेचर. और वो जो है फिर धीरे धीरे जो है इफ़ वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स ही बिकम्स एलिनेटेड फ्रॉम हिज ऑन जॉब, क्योंकि वॉट एवर ही इज़ अर्निंग और वॉट एवर ही इज़ डूइंग फॉर द मास्टर, ही इज़ नॉट डूइंग फॉर हिमसेल्फ. सो in this particular concept Weber agreed with Karl Marx and he said that the strict control of officials it acts as a limitation to the human freedom. He said that the uniform and rational procedures of bureaucratic practices they largely prevent spontaneity, creativity and individual initiative. यानी कि जो एक इंडिविजुअल जो है उसके लिए जो बहुत ज़्यादा फिर रूम रह नहीं जाता है. So he said that this impersonality of official conduct tends to produce specialists without spirit. These sociological jargons you have to use in your answer to gain more marks. So he basically foresaw the possibility of man trapped in the specialized routines with little awareness of the relationship between their jobs and the organization as a whole. He wrote that it is horrible to think that the world
would one day be filled with little cocks, little men clinging to little jobs and striving towards the bigger ones. So basically Weber was himself aware about the limitations of bureaucracy, and he said that कि जो bureaucratic organizations जब completely अपने एक full fledged state में आ जाएंगे, it will completely restrict the individual freedom, individual initiativeness, and it will kill the spirit of freedom, and it will produce specialists without spirit. So because of these aforementioned reasons, there will be an evolution of an iron cage which will be technically ordered, rigid, and it will lead to a dehumanized society. So these are the lines which was written by Max Weber himself. You have to use these terms like technically ordered, rigid and dehumanized society. ये जो है वो bureaucratic organization की जो है वो देन होगी as per Karl Marx. So he said that bureaucracy puts us in an iron cage which limits individual human freedom and potential instead of a technological utopia that should set us free. So that was the question asked, that do you agree that Weber's bureaucracy captures us in an iron cage. So ये iron cage का जो concept है वो खुद मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था, and I hope that this concept is clear that why bureaucracy tends to capture the individual in an iron cage. And he said that this cage will become very powerful, and once a person or an individual is captured in this, he will not be able to break free this iron cage. That's led him to conceptualize or conclude that despite its disadvantages, he believed that bureaucracy was essential to the operation of large scale industrial societies. He said कि जो modern industrialist जो सोसाइटी है और जो उसका गवर्नमेंट एस्पेक्ट है, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, या जो ओवरऑल उसके जो जितने भी सोसाइटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, दे हैव बिकम सो ह्यूज इन नेचर, एंड without bureaucratic organizations you cannot efficiently run these organizations. So he said that the state and economic enterprise could not function effectively without bureaucratic control, and he also foresaw the two dangers which are there in the bureaucratic type of organization. First he said that during the time of crisis आपके जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं दे विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन. वाई? बिकॉज आपने जो ब्यूरोक्रेट्स जो आपने हमेशा उनको जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दिए हैं वो एक ऑर्डरली फैशन में दिए हैं कि जब सोसाइटी में ऑर्डर जब रहेगा तो उनको कैसे यूज़ करना है. बट सोसाइटी में जब क्राइसिस आएगा तो जो आपके रूटीन वाले जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है दे विल नॉट बी एबल टू सफाइस, और आपको जो है वो इनोवेट करना पड़ेगा, आपको जो मनूवरिंग करनी पड़ेगी. लेकिन आपने अपने ब्यूरोक्रेट्स को जो एक लाइन में एक ढांचे में ढाल रखा है, दे विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन. और अगर हम पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते हैं कि कई बार जो है एक ऐसी स्टेट जाती है कि जब जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो डिसीजन ले नहीं पाते हैं, जो आप जानते हैं कि कई बार इसको पॉलिसी पैरालिसिस के नाम से जाना जाता है. दिस इज़ अ मॉडर्न फीचर ऑफ गवर्नेंस. दैट was the first danger which was predicted by Max Weber, and second was kind of crony capitalism. He said कि जो आपके जो bureaucrats जो हैं they will be under pressure from the capitalists' interest, and they will shape or they will design or they will formulate their policies to fit the demand of the capital. So we see that on this part also Max Weber was more thinking towards Marxist lines, or he was thinking on the lines of Karl Marx. So he said that these are the two dangers of bureaucracy. Although bureaucracy is inevitable, you cannot function without bureaucratic organizations, but these are the two dangers which are inherent in the bureaucratic form of organization. And इसको जो है वो कम किया जा सकता है. He said to avoid these dangers you have to put strong parliamentary control over the स्टेट ब्यूरोक्रेसी. वॉट ही मेंट कि आपकी जो टॉप पोजीशंस जो हैं वहाँ पे जो है वो आपको पॉलिटिशियंस को रखना होगा, प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हु कैन क्वेश्चन द ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स. इसीलिए आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम्स जो हैं, प्रेजेंट सिनेरियो हैं, आपके जितने भी चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो डीजीपी हों, आपके स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हों या कोई भी हो, दे आर पुट अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मिनिस्टर. यानी कि वो जो है उस मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, एंड जो पॉलिटिशियंस जो होते हैं दे डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर पब्लिक एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर पब्लिक, एंड दे टेल टू द ब्यूरोक्रेट्स देयर ऑब्जेक्टिव्स कि हमें जो है वो ये वाली पॉलिसी चलानी है, एंड देन द ब्यूरोक्रेट्स दे फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज. सो दिस इज़ द
prediction which we see almost completely true in our present times. So he said that इसके जो है वो 2 फायदे होंगे, जो पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन होगा, and it will encourage strong and effective leadership first, and it will also help to open the bureaucracy to public view and public scrutiny. यानी कि जो पॉलिसी जो बनाई जा रही है वो पब्लिक के लिए कितनी लाभदायक है, that will only be possible when you put professional politicians in the overall in charge of these bureaucratic departments. सो वी कैन कंक्लूड नाउ. अगर आप जो है वो एक कंक्लूजन अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं इतना पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद, तो यू आर वेलकम टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड, और मैं जो है वो अपना कंक्लूजन ये लिखता कि जो वेबर के जो आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी है दैट इज़ एम्बिवेलेंट इन नेचर, यानी कि ही नोज बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी. ही सीज ब्यूरोक्रेसी एज अ मोस्ट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in the present times, but he also says that this will capture the individual into an iron cage which will restrict its freedom, and if you want to avoid these dangers of bureaucracy, then you have to put professional politicians in the topmost positions. So that is how you can conclude your answer. Thank you so much guys for watching the video till the end, and I hope that the concept of bureaucracy and the concept of authority and social action is now clear to you. So with this we conclude the sociological thinkers में मैक्स वेबर वाला पार्ट. मैक्स वेबर की जो मोस्टली जितनी थियोरीज थी, इंक्लूडिंग आइडियल टाइप्स, वर्स्टेहन एंड आपका प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, कैसे जो है वो एक रिलीजियस कोड जो है इट हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, एंड देन टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन, types of authority, and now finally what is bureaucracy and how bureaucracy has evolved, what are the factors responsible for bureaucracy, and what are disadvantages of it. So thank you so much guys for watching the complete video. Have a nice day.